meditation, shall we open our Bible to Ephesians chapter 5. आज के ध्यान के लिए इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, Ephesians chapter 5 verse 27. इफिसियों 5 उसका 27 वचन पढ़ेंगे। Ephesians chapter 5, kindly read verse 27. और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਬੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਅਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। So that he might present the church to himself in a splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. That he might present it to himself a glorious church. जैसे कि वो ऐसी वस्तु हो वरन ना पवित्र और ना निर्दोष हो, और अपने आप को तेजस्वी के होकर not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Today we are going to meditate about this glorious church. आज हम इस जो पवित्र जो हमारा विश्वास कर रहे हैं उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। Glorious church. महिमा में जो हमारा चर्च है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तीजो महीना कलीसिया, महिमा से भरा हुआ कलीसिया, महिमा से भरा हुआ कलीसिया पर हम ध्यान देंगे। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। According to 1 Corinthians chapter 3 verse 16, that we read. पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? We are individually we are the temple of God. हम हर एक अपने आप में हम एक परमेश्वर का भवन है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Nextly, we can see 1 Corinthians chapter 6 verse 19 that we read. There also we can see we are the temple of God. पहला कुरिन्थियों उसका 6 का 9 वचन में भी हम पढ़ते हैं कि हम जो है परमेश्वर का भवन है। Collectively we are the temple of God. We are the church of God. एक समुदाय के रूप में हम जो परमेश्वर का भवन है, एक परमेश्वर की जो स्थान है। In Corinthians we can see individually we are the temple of God. कुरिन्थियों में हम देखते हैं कि एक अपने आप में ही एक हम परमेश्वर का भवन है। Secondly, we are collectively we are the temple of God. Otherwise, we are the called as a church of God. दूसरा हम देखते हैं कि हम सब एकजुट होकर एक परमेश्वर का भवन कहलाते हैं। We are every week we are gathering in His presence. हर हफ्ता हम परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पर शामिल होते हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। God's great plan is we should become a glorious church. परमेश्वर का जो उनकी सोच है, जो उनका विचार है, वो ऐसा है कि एक महिमा में जो चर्च है वो बनकर हम सामने आना चाहिए। We should not be trust upon God not only in the earthly thing. We must trust God. We should become a holy and blemished before God. सिर्फ इस संसार की वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि एक पवित्र जीवन जीने के लिए और एक महिमा में चर्च बनने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। We can see in this world so many churches. या इस दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग चर्च हैं। So many denominations they started. बहुत ही अलग अलग तरह के जो चर्च है वो यहाँ पर हैं। We are in the mission that called as the Pentecostal mission. हम एक ऐसी संस्था में हैं जिसका नाम पेंटिकॉस्टल मिशन है। Today I am not going to exalt, otherwise boasting about the mission. आज मैं अपनी मिशन के बारे में ज्यादा बढ़ चढ़ाकर जो इसको नहीं बताऊंगा। But we should understand we must become a glorious church. पर हम इस चीज पर ध्यान देंगे कि हमें एक महिमा में जो चर्च है वो बनकर हमें सामने That आना है। only God, the Lord Jesus Christ, gave Himself in the whole last breath of His life. यही जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आखिरी दम तक हमें जो ये वचन है वो दिया है। He gave Himself for this glorious church. इस महिमा में जो गिरजाघर के लिए उसने अपने आप को दे दिया। That's why when we read Romans chapter 8, we can see. जब हम रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय पढ़ते हैं। Romans chapter 8 verse 32, kindly read that verse. 8 का जब हम उसका 32 वचन पढ़ते हैं। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वे उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। He that spared not his own son, but delivered him up
for us all, how shall he not with him also freely give us all things? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसने हम सबको ये दे दिया, वह उसके साथ हमें वो सब कुछ क्यों न देगा? If we believe God, God give all the needs of our life. अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखें कि हमारी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करके देगा। Our Jesus, our God is called us. हमारा परमेश्वर हमें बुला रहा है। Our God called us in this apostle, saints of this apostle. इस संतों Fellowship of the apostle. इस संतों की संगति में परमेश्वर हमें बुला रहा है। He is faithful to lead in the end. हमें आखिरी तक हमारा चरवाहा बनकर हमें रास्ता दिखाने In के the लिए same verse, in the same chapter, what we read there. इसी अध्याय में हम और क्या पढ़ते हैं? In the 38th verse, what we read there. 36 अध्याय में हम 36 वचन में क्या पढ़ते हैं? Moreover, whom he did personated, them he also called, and whom he called them he also justified, and whom he justified them he also glorified. जिसको वो बुलाता है, जिसको वो अपने पास बुलाता है, उसको ही वो महिमा में करता है। He called us, उसने हमें बुलाया, he justified us, उसने हमें जो है he also glorified us. और हमको महिमा में किया। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। How much we are faithful in His presence, that much God will justify us. जो उसकी हुजूरी में जितना हम वफादार होकर रहेंगे, उतने ही ज्यादा परमेश्वर हमें महिमा में करेगा। Justified us. उतना ही परमेश्वर हमको जो है वो हमको जिनको परमेश्वर ने बुलाया, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन 8:30 फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। और He justified us. उसने हमें धर्मी ठहराया He है। glorified us. उसने हमें महिमा में किया He है। also glorified us. उसने हमें महिमा में किया है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। God's great plan is He want to glorify. Otherwise, He want to become a glorious church. परमेश्वर का जो बड़ा जो उद्देश्य है कि हम सबको जो है वो एक महिमा में चर्च बनाने He want to make us a glorious church. हमें एक बड़ी महिमा में चर्च बनाना कम That's why God gave Himself His only begotten Son. इसलिए परमेश्वर ने अपना ही एक एकलौता पुत्र उसके लिए दे दिया। When we see about this church, जब हम उसके चर्च के बारे में देखते हैं, three parts in this church. 3 चीजों को हम इस बारे में देखते हैं। First is the shadow of the church. पहली जो उसकी जो छवि है। Secondly, the present church. दूसरा जो चर्च है, present. दूसरा जो अभी इस वक्त पर चर्च है। Nextly, future church. और तीसरा है जो भविष्य का चर्च है। Once again, I will repeat. एक बार मैं फिर से दोहराऊंगा। Shadow of the first of all, we can see for shadow of the church. पहले हम जो चर्च की एक छवि है उसको देखते हैं। That is the Garden of Eden. Otherwise, for example, Garden of Eden, Noah's Ark, like that tabernacle, like the shadow of this church. पहले हम जो उसकी छवि को देखते हैं, जैसे आदम की वाटिका, नूह की किश्ती, तो ये सब चीजें हैं जो उसकी एक छवि है। These are all the shadow of this church. ये सब इस चर्च की जो है वो छवि है। Secondly, present church. दूसरा हम देखते हैं कि जो इस मौके पर जो चर्च है, After the Holy Ghost came in upon this earth, this Pentecostal church is called started. जब पवित्र आत्मा की बरकत जब हुई, उसके बाद जो पेंटिकॉस्टल चर्च है इसकी शुरुआत हुई। That is the present church. जो है जो इस वक्त का हमारा चर्च है। This church is in future it is become God wants to make us the glorious church. और इसी हमारे चर्च को भविष्य में परमेश्वर एक महिमा में चर्च बनाना चाहता है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। I want to show 3 things briefly how we must become a glorious church. मैं 3 चीजें आपको एक अच्छे से बताऊंगा कि किस तरह हम एक महिमा में चर्च बन सकते हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। First of all, when we see सबसे पहले जब हम देखते हैं in the Garden of Eden, जब हम अदन की वाटिका में देखते हैं, God created a man. परमेश्वर ने एक इंसान को बनाया। The man called Adam. उस इंसान का नाम उसने आदम रखा। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। God wants to make us a glorious church.
परमेश्वर हमें अपना महिमा में जो चर्च है वो बनाना चाहता है। That's why we should become we should know the mind of Christ and submit ourselves to be also become a glorious church. इसलिए हमें परमेश्वर के दिमाग को समझना चाहिए और अपने आप को समर्पण करना चाहिए ताकि हम भी वैसा बन जाएं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। First of all, this church should not have the worldly things. सबसे पहले जो इस चर्च में जो दुनियादारी की चीजें हैं वो उपस्थित नहीं होनी चाहिए। That's why our saints give us so many rules and regulations. इसलिए हमारे चलाने वाले हमारे संतों ने बहुत सारे जो कि निर्देश है वो हमें दिए। So many people complaining us in our church these are all the condition is not that, but your church also have all these condition. बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमारे जो दूसरे चर्च है वहाँ पर ये सब चीजें नहीं है, लेकिन आपके चर्च में ये सब चीजें हैं। Why God gave all these rules and regulations? क्यों परमेश्वर ने ये दिशा और निर्देश हमें दिए हैं? He want to make us a glorious church before spot and wrinkle. क्योंकि परमेश्वर हमें एक महिमा में जो चर्च है वो बनाना चाहता है। There we can see our keyword Ephesians chapter 5 verse 27. Ephesians 5 उसका 27 जो हमारा आज का वचन है उसको फिर से देखते हैं। That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. एक इस तरह का महिमा में चर्च हमें बनाना चाहता है जिस पर कोई भी दाग ना हो, जो बिल्कुल ही पवित्र हो। First of all, this church should not have the worldly things. दुनियादारी की जो चीजों की उपस्थिति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। Worldly tradition or rituals. दुनियादारी के जो रीति रिवाज है वो इस चर्च में नहीं होने We चाहिए। should not give room for the worldly things or rituals or the tradition. दुनियादारियों की चीजों के लिए, उनके रीति रिवाजों के लिए हमें जगह नहीं देनी We है। are living in this world, इस दुनिया में हम रह रहे हैं, but we should not be like worldly people. दुनिया के लोगों के समान हमको नहीं रहना है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। For example, when we see God created a man, जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया, God created a man from out of the dust. धूल से, जो मिट्टी की धूल है उससे परमेश्वर ने एक इंसान को बनाया। But when woman came from man, और जब स्त्री जो है वो इंसान आदमी से आई। praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। God created a man from the dust. परमेश्वर ने एक आदमी को बनाया मिट्टी के। But Eve not came from dust. पर जो हवा थी वो उस जो मिट्टी की जो He came out from the man. जो हवा थी वो जो आदमी थी उससे आई। That means there is no connection between the ground. इसका ये मतलब है कि जो जमीन से उसका कोई भी जो है वो रिश्ता नहीं था। That from Eve, that there is no connection from the dust of the ground. जो हवा है उसका जो मिट्टी की धूल है उसके साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है। Adam only taken from the dust of the ground. सिर्फ आदम को परमेश्वर ने जो धूल मिट्टी है वहाँ से बनाया। But that Eve not came from the dust, but he came from the out of man. पर जो हवा है उसका जो उस धूल से कोई वास्ता नहीं है, वो जो आदमी है उससे आई। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। There we can see Genesis chapter 2 verse 21 to onwards we can see. उत्पत्ति उसका 2 अध्याय में हम देखते हैं। Kindly read that verse 21 to 23. 21 से 23 वचन पढ़ेंगे। Genesis chapter 1 verse 21 to 23. इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के second chapter. Genesis chapter 2 verse 21 to 23. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बारी नींद में डाल दिया और जब वे सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। This woman, how he came from? हम देखते हैं कि हवा जो है वो कैसे आई। He came out of a man. जो वो है वो आदमी से निकली। It means no connection between the dust of the ground. इसका मतलब ये है कि जो जमीन की जो धूल है उससे उसके साथ कोई संबंध नहीं है। That's why Jesus also
says in John the Gospel, इसलिए हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, John the Gospel chapter 17 verse 16, what do we read there? यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय में हम क्या देखते हैं? Kindly read that one, John the Gospel chapter 17 verse 16. 17 का 16. They are not of the world, even as I am not of the world. वो इस संसार के नहीं है जैसे मैं इस संसार का नहीं हूँ। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। For example, when we see the life of the fish, जैसे हम एक मछली की जिंदगी को देखते हैं, whole sea filled with salted water. जो पूरा जो समुद्र है वो एक नमक के पानी के साथ भरा होता But है। in the fish life, there is no salt in its life. और मछली के लिए वो जो पानी है उस किसी भी तरह के उसको हानि नहीं पहुंचाता। उसी को Likewise, Jesus also testified here, they are not of the world, even as I am not of the world. इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि वो इस संसार के नहीं है जैसे मैं इस संसार का नहीं हूँ। When we read John the Gospel chapter 14 verse 30, what do we read there? जब हम उसका 14 अध्याय पढ़ते हैं, I will not take much them, for the prince of this world cometh, and hath not nothing in me. 14:30. I will not take much with you, for the prince of this world cometh, and nothing in me. मैं इस संसार से कोई कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं रखूंगा, क्योंकि इस संसार का जो देवता है वो आता है और मेरा तुम्हारे साथ कोई कुछ भी लेना नहीं है। संसार का सरदार आता है, उसका मेरा कुछ भी नहीं है। संसार का सरदार आता है और उसका मेरा कुछ भी नहीं है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। We should not be connected with the worldly things. इस दुनियादारी की चीजों के साथ हम अपने आप We are living in this world, but we should not give room for the worldly things, worldly tradition and rituals and etc. इस दुनिया में हम रह रहे हैं, पर इस दुनियादारी की रीति रिवाजों के साथ, दुनियादारी की चीजों के साथ हमें अपने आप को नहीं जोड़ना है। We should not walk like worldly people. दुनियादारी के लोगों के समान हमें नहीं चलना है। He called us with a high calling. परमेश्वर ने एक बहुत ही बड़ी बुलाहट से हमें बुलाया है। He called us. He justified us and He also glorified us. उसने हमें बुलाया है, उसने हमें धर्मी ठहराया है और उसने हमें महिमा में किया है। Secondly, that glorious church what they require. दूसरा हम देखते हैं इस महिमा में चर्च में क्या चीज है। When we see that the Garden of Eden, God came out this Eve. जब हम आदम की वाटिका में देखते हैं कि जैसे हवा आई, bone from bone. वो एक हड्डी जो पसली है उससे उसका जन्म हुआ। Read that verse. वचन को Genesis chapter 2 verse 21. तब यहोवा ने आदम को बारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। And the rib which the Lord God had taken from man, made He a woman, brought her unto man. और परमेश्वर ने आदम की पसली से हवा को बनाया और उसको आदम के पास लेकर आया। Without bones, a man cannot live. हड्डियों के बिना जो एक इंसान है वो जिंदा नहीं रह सकता। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। As a man needs bone, जिस तरह से एक मनुष्य को जो हड्डी के likewise the church also have this bone. इसी प्रकार इस चर्च को भी एक जो है एक हड्डी की the church also should have this bone. इसे चर्च को भी एक रीढ़ की हड्डी के समान होना चाहिए। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। What is this bone shows? ये जो हड्डी है वो क्या दर्शाती है? The bone shows the doctrine of God. ये जो हड्डी है वो परमेश्वर का वचन उसको दर्शाती है। उपदेश, doctrine. परमेश्वर के उपदेश को दिखाती है। This bone shows the doctrine of God. ये हड्डी जो है वो परमेश्वर के उपदेश को दिखाती है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। What is this doctrine? और ये जो उपदेश है वो क्या है? The fundamental doctrine is that we are having a 7 step of the doctrine. जो एक मुख्य जो उपदेश है उसके जो सात उसके बिंदु उनको हम देखते हैं। Upon this doctrine only the church will be built as a fitted and framing as a holy church. इसी 7 बिंदुओं के ऊपर जो चर्च की एक नींव रखी जाती है और उसको एक महिमा में चर्च बनाया जाता है। This doctrine having 7 steps of the doctrine. इस उपदेश में जो है 7 जो बिंदु है उनको हम देखते हैं। First of all, we can see salvation.
सबसे पहले हम देखते हैं उद्धार, Secondly, water baptism. दूसरा हम देखते हैं पानी का बपतिस्मा, Thirdly, Holy Spirit. तीसरा हम देखते हैं पवित्र आत्मा, Fourthly, life of separation. तो चौथा हम देखते हैं कि जो एक बंधुआई का जीवन, Fifthly, divine healing. पांचवा हम देखते हैं कि स्वर्गीय चंगाई, Sixthly, life of suffering. छठवां हम देखते हैं कि जो एक दुख की जिंदगी, Seventhly, lastly, we can see perfection in holiness. सातवां हम देखते हैं कि पवित्रता में अपने आप को पूरा सही करना। These are all the fundamental doctrine. ये सारी है जो एक मुख्य जो उपदेश है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। In these days, so many men roaming here and there, and they did not they did not put a foundation upon this doctrine. यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग संसार में इधर उधर घूम रहे हैं, पर उन 7 उपदेशों के ऊपर अपने जीवन को खरा नहीं उतार रहे हैं। God graciously gave all this doctrine in our life. परमेश्वर ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो सारी जो उपदेश है हमारी जिंदगी में दिए हैं। But we should go forward in perfection. पर इसी तरह हमको अपने आप में सिद्ध करते हुए आगे बढ़ना When we चाहिए। read Hebrews chapter 6 verse 2, जब हम इब्रानियों की उसका 6 अध्याय का 2 वचन पढ़ते हैं, Hebrews chapter 6 1 and 2. इब्रानियों 6 का 2, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव पर फिर से ना डालें। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। We should go forward in our life. अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। We should not again and again put a foundation. हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। We should not laying again this foundation. जो हमारी नींव है उसको बार बार डगमगाना नहीं चाहिए। पढ़ो वचन पढ़ो। Hebrews chapter 6 verse 1. इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ We हो। should go forward to attain this perfection. इस सिद्धता को प्राप्त करने के लिए हमें जिंदगी में आगे आगे बढ़ना चाहिए। Our foundation should be perfect. हमारी जो नींव है एक पूरी सही तरीके से खड़ी होनी Where चाहिए। our foundation should be put in our life. जब एक अच्छी नींव हमारी जिंदगी में आएगी। Ephesians chapter 2 verse 20 onwards, what do we read there? इफिसियों पत्री में हम क्या देखते हैं? Ephesians chapter 2 verse 20. इफिसियों 2 का 20 वचन। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। In whom second 21. जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ In हो। whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. जिसमें सारी रचनाएं एक साथ मिलकर परमेश्वर के एक मंदिर को बनाती We हैं। should build upon the foundation of the apostles and prophet Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. हमारे जो चलाने वाले हमारे जो नबी रहे हैं और परमेश्वर यीशु मसीह की जो एक नींव है उसके ऊपर हमें अपनी That चट्टान is खड़ी called करनी as a है। bones. इसको एक नींव और एक हड्डी कह सकते That is हैं। a doctrine. और ये एक उपदेश है। Then only become a glorious church. ये करके ही हम एक महिमा में चर्च हम बन सकते हैं। First of all, there is no world in our life. सबसे पहले इस कोई भी संसार की चीज हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। Means the Eve came out from the Adam, a man, not connection with the mud of the dust. हम देखते हैं कि जो हवा है वो आदमी से निकली और उसका जो धूल मिट्टी के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। I am not the world, even as I, the Lord Jesus Christ said. और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इस संसार का नहीं हूँ। First of all, if we become a glorious church, we should not become a worldly people. सबसे पहले महिमा में चर्च बनने के लिए हमें इस दुनिया की चीजों से अपने आप को अलग करना होगा। Secondly, we should have this doctrine, otherwise that bone. सबसे दूसरा नंबर ये जो उपदेश है ये हमारे जीवन में होना चाहिए। Lastly, we should become a body of Christ. Body of Christ. तीसरा हम देखते हैं कि एक परमेश्वर का जो मंदिर है वो हमें बनकर रहना चाहिए। Means that we should have this character of Christ. जो परमेश्वर का जो स्वभाव है, जो उनकी जो चाल चलन है वो हमारे जीवन में From आना the चाहिए। head only, all the commands will proceed.
सिर से जो हमारे दिमाग से जितना भी सारे जो उद्देश्य है वो सब चलते हैं। From the head only, all the commands will proceed. हमारे दिमाग से जितनी हमारी चीजें हैं वो सारी आगे काम करेंगी। We are the body of Christ. हम परमेश्वर का एक जो है परमेश्वर का We should subject unto Christ Jesus. परमेश्वर मसीह के अपने आप को हमें उसके अधीन करना चाहिए। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। In this world, so many denominations, near about 1,600. 1600 अलग अलग तरह के जो चर्च हैं वो यहाँ पर इस दुनिया में हैं। But we are in the apostles of the doctrine. और यहाँ हम जो एक संतों की संगति में आए हैं। We should subject for the saints. अपने जो संतों के उनके द्वारा जो हमें We should obey for the rules and regulations. जितने भी जो हमारे रूल है हमारे लिए निर्देश Then only become a body of Christ. तभी हम जो परमेश्वर का शरीर है वो बन Then पाएंगे। only all the God's character will impart in our life. तभी जो परमेश्वर की सारे जो स्वभाव है वो हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। सोने वाले के लिए बोले हालेलुया। हाँ, एक दो लोग सो रहे हैं। हालेलुया। उनसे आवाज से बोले हालेलुया। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। I want to show one example. एक जो है एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। How this character of Christ proceed in our life. जो परमेश्वर का स्वभाव है इसको किस तरह से हम अपने जीवन में लेकर आ सकते Otherwise, हैं। how we must know that original. Otherwise, we must become a glorious church. कैसे हम जाने परमेश्वर के स्वभाव को और अपने आप को एक महिमा में चर्च बनाए। In our church also, every church also having two groups. हर एक चर्च में अलग अलग चर्चों में दो तरह के जो भाग हैं वो बने रहते हैं। One is perfection, other one is low character. एक होते हैं जिनका जो स्वभाव ठीक नहीं होता है और एक होता है जो अपने आप को अच्छा सिद्ध करते जाते हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। We must become a glorious church. इसी तरह के एक जो महिमा में जो चर्च है वो हमें We बनना should है। go forward to attain this perfection. इस सिद्धता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। We should inherit that God's character. जो परमेश्वर का स्वभाव है इसको अपने जीवन में हमें उतारना है। These 6 steps when we go forward, then only we can attain this 7th step that is perfection of holiness. छठा बिंदु हमने देखा कि जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तभी जो सिद्धता है तभी एक पवित्रता है वो तो हमें अपने जीवन में उतारेंगे। Then only that God's character impart in our life. तभी जो परमेश्वर का स्वभाव है वो हमारे जीवन में आकर रहेगा। For example, when we see in the tabernacle, the 12 rods kept in the tabernacle. जब हम देखते हैं कि तंबू में जो 12 जो है वो रॉड है वो रखी गई। What is this rod? ये रॉड है जो उसको क्या दिखाती है? What is this rod? ये रॉड क्या है? Not that iron rod. ये जो लोहे की जो रॉड है वो नहीं है। Wood rod. जो लकड़ी की जो है रॉड है वो wooden rod. लकड़ी की It's kept in the tabernacle. इसको तंबू के बीच में उसको गाड़ा जाता था। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। After some time, कुछ समय के बाद only one rod budded, but all 11 rods is not budded. सिर्फ जो एक ही जो रॉड है वो ही सारा बोझ उठा रही और जो 11 जो रॉड है वो ज्यादा उनका काम नहीं है। Kindly read that verse in वचन को पढ़ेंगे। Numbers chapter 17. गिनती 17 अध्याय 7 and 8. उसका 7 और 8 वचन। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें से कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। Moses laid up the rods before the Lord in the tabernacle of witness. हम देखते हैं कि मूसा ने वो सारी रॉड है वो तंबू के सामने परमेश्वर के And लिए it रखती है। came to pass that on the tomorrow Moses went into the tabernacle of witness, and behold, the rod of Aaron for the house of Levi was budded and brought forth buds and blossoms and yielded almonds. और दूसरे दिन जब मूसा तंबू में गया तो वो क्या देखता है कि जो हारून की राड है जो लेवी के घराने की है उसमें कलियां फूटी, अर्थात उस कलियां लगी और वही जो है उसने ही फल लाया। All the 11 rods, they did not have the life.
और जो बाकी की 11 रॉड थी उनमें कोई भी जिंदगी नहीं बची। Only one rod have this life. सिर्फ एक ही जो रॉड है उसमें जिंदगी है, That is eternal life. और ये है जो सदा का जीवन है। We must yield for that life. अपने आप को ऐसी जिंदगी के लिए हमको अब तैयार करना चाहिए, For that eternal life. और इस सदा के जीवन के लिए अपने आप को तैयार We should करना है। give room for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए अपने जीवन में जगह देनी है। Then only God's character impart in our life. तभी जो परमेश्वर का स्वभाव है वो हमारे जीवन में आ उतरेगा। एक उदाहरण मैं बोल के खत्म करेगा। एक और मैं आपको उदाहरण देकर खत्म करूंगा। ये बाइबल में नहीं है। ये जो उदाहरण है ये बाइबल में नहीं है। जब सुलेमान का ज्ञान को देखने के लिए लोग आया है, जब सुलेमान के ज्ञान को देखने के लिए लोग आए, एक स्त्री, सेबा का स्त्री, राज स्त्री, एक जो शाही स्त्री थी, उस ज्ञान को परखने के लिए आया। उसको परखने के लिए वो उसके पास आई। We all know all this story. हम सब इस जो कहानी के बारे में जानते हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। So many roses are kept there. बहुत सारे जो फूल हैं वो वहाँ पर थे। This queen asked from King Solomon. और ये जो रानी वो आई थी वो राजा सुलेमान से पूछती है, Which is the original flower? और इन सभी फूलों में जो असली फूल है वो कौन सा है? Solomon carefully watching all the flowers. सुलेमान बहुत ही ध्यान से उन सभी जो फूल हैं उनको देखता है। At the same time, one fly came upon the flower. और उसी समय एक जो मधुमक्खी है वो आकर एक फूल के ऊपर बैठती है। Immediately that Solomon take this flower and kept before the queen. उसी समय सोलोमान जिस फूल के ऊपर मधुमक्खी बैठती है उसको Where there is life, where this power, there only this power will come. जहाँ जिंदगी होगी वही ये सब होगा और वहीं से इस चीज को All the उठाया flowers is same. बहुत जो जितने भी फूल हैं वो सब मरेंगे। All the flowers is same like the original. जो सारे फूल हैं वो सभी एक समान दिखते हैं। But only one flower is having this life. सिर्फ एक ही फूल में जो जिंदगी है। Likewise, we should impart our Christ, God's character. इसी तरह से परमेश्वर का जो स्वभाव है इस फूल के माध्यम से हमें अपने जीवन में Not उतारना only we चाहिए। are coming and going to the presence of God. बहुत सारे हम आ रहे हैं और जा रहे हैं परमेश्वर की We हजूरी are से। hearing the word of हम God. परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। But that word of God should work in our life. जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे जीवन में काम करना We चाहिए। should give room for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए अपने जीवन में जगह We देना should चाहिए। grow the God's character. परमेश्वर का स्वभाव को अपने जीवन में उत्पन्न करना Then चाहिए। only we become a glorious church. तभी हम एक महिमा में जो चर्च बनकर दिख सकते हैं। When we come to our key verse, Ephesians chapter 5, जब हम अपने मुख्य वचन इफिसियों उसका 5 अध्याय को देखते verse हैं, 27, what do we read there? 27 वचन में हम क्या देखते हैं? There we can see spot, without spot or wrinkle. तब हम देखते हैं कि बिना किसी दाग के या बिना किसी How this के spotless came in our life. कैसे इसको हम अपने जीवन में ला सकते हैं? How this blameless blame come in our life. कैसे एक निर्दोष जीवन को हम अपने कर सकते हैं? Jude verse 23 we can see. 23 वचन में हम देखते हैं There is three reasons the spotless come in our life. 3 हम जो मुख्य कारण देखते हैं कि कैसे दोष हमारी जिंदगी में आता है। One is sin, other one is flesh, and other one is from the world. पहला है सबसे पहला पाप है, दूसरा ये संसार है और तीसरा जो Jude verse 23, kindly read that verse. उसका 23 और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। There we can see flesh about from flesh the life is spotted. दूसरी वहाँ पर हम देखते हैं कि शरीर के द्वारा जो जिंदगी है उसमें जो दोष है वो आता है। James chapter 1 verse 27, what do we read there? James chapter 1 verse 27. याकूब उसका 1 का 27 वचन में हम क्या देखते हैं? Unspotted from the world. इस दुनिया के द्वारा जो है वो दोष हमारे जिंदगी में आता है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। That's why we should not give room for these the 3 things. तभी इन 3 चीजों के लिए अपनी जिंदगी में हमें जगह नहीं We देनी should not चाहिए। give room for the sin. पाप के लिए जिंदगी में We जगह should नहीं not देनी। give room for the flesh. अपने जो शरीर के पाप है उनके लिए जीवन में जगह नहीं देनी है। We should not give room for the whole world.
इस दुनिया के लिए अपने जीवन में कोई Then जगह नहीं only देंगे। we can preserve our life with the unspotted and blameless. तभी हम अपने जीवन को बचा सकते हैं और एक निर्दोष जीवन हम जी सकते हैं। We should go forward अपने आप को आगे बढ़ाना to चाहिए, attain the perfection. इस सिद्धता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है। 84th Psalm, what do we read there? 84th Psalm, what do we read 84 there? भजन संहिता में हम क्या देखते हैं? Kindly read 7th verse and conclude the message. वे बल पर बल पाते जाते हैं, हाँ। उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। They go from strength to strength. वो बल के ऊपर बल जो है वो पाए जाते Every हैं, one of them in Zion appeared before God. और उनमें से हर एक अब सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। How we become a blameless, unspotted और कैसे एक निर्दोष हम बन सकते हैं? when we become old. When we become old, जब हम जो है उम्र के साथ बूढ़े हो जाते हैं, that our strength will become decrease. हमारी जो बल है वो कम हो जाता है। But in spiritual life, पर अपने आत्मिक जीवन में we should not become a weakness. अपने आत्मिक जीवन में हमें कमजोर नहीं पड़ना We है। should go from strength to strength. अपने आत्मिक जीवन में बल के ऊपर बल हमें पाना है। Then only we can attain appearance before God in Zion and Jerusalem. तभी परमेश्वर के सामने सिय्योन में हम अपने आप को दिखा When देख we सकते see हैं। eagle's life, जब हम जो पक्षी ईगल है उसको देखते हैं, they that wait upon the Lord, they renew their strength. जो वो है वो परमेश्वर के ऊपर बल करते हैं और अपनी जो Shall we all close our eyes? अपने आंखों को बंद Our करेंगे। Lord Jesus Christ going to appear very soon. हमारा परमेश्वर मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। Coming of the Lord is very nigh. परमेश्वर का जो आगमन है वो बहुत That's जल्दी why है। we should not give room for the world or sin or any flesh. तभी इस संसार के लिए, इस शरीर के लिए या दुनिया के लिए जगह नहीं We देनी should है। go forward अपने आप को आगे बढ़ाना to चाहिए attain the perfection. परमेश्वर की सिद्धता को प्राप्त करने के लिए। We receive the strength to stand. अब बल के ऊपर बल जो है वो हमें Then प्राप्त only करना we है। can see appearance in the Zion and तभी Jerusalem. परमेश्वर के सिय्योन में हम अपने आप को देख सकते God हैं। wants to make us a glorious church. परमेश्वर हमें एक महिमा में चर्च बनाना चाहता है। That's why we should not give room for the world. तभी इस दुनिया के लिए कोई जगह नहीं देनी We है। should receive the power of doctrines. परमेश्वर के उपदेश को अपने जीवन में We प्राप्त should करना become है। a bones. अपने आप को एक मजबूत हड्डी को बनाना है। By bones we can overcome this world. एक मजबूत रीढ़ के द्वारा संसार को हम फतह पा By सकते हैं। bones we can overcome all the evil powers. सारी दुष्ट शक्तियों को हम एक मजबूत रीढ़ के Shall we all द्वारा give room for the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के लिए जगह देंगे। When we give room for the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा के लिए जगह देंगे we receive the strength to stand. तब हम बल के ऊपर बल पाएंगे। May God help us. परमेश्वर वचन के द्वारा आपको Praise आशीष the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. दुल्हनीत तुझा कनेक बस कोई योग ना होवे। हे दुल्हनीत तुझा कनेक बस कोई योग ना होवे। पवित्र निर्दोष से निर्मल होवे। ऐसी कलीसिया ले जाएगा। पवित्र निर्दोष से निर्मल होवे। ऐसी कलीसिया ले जाएगा। जाग जातियों अपना बल पा। यरूशलेम अपने सोने बल पर पा। जाग जातियों अपना बल पा। यरूशलेम अपने सोने बल पर पा। अपनी तो बलि दीन रहता। ईद तो जा दुलारिया। अपनी तो बलि दीन रहता। ईद तो जा दुलारिया। जातियों जता बलका। यरूशलेम अपने सोने बल जता बलका। यरूशलेम अपने सोने बल अपनी तो बलि दीन रहता। ईद तो जा दुलारिया। अपनी तो बलि दीन रहता। ईद तो जा दुलारिया।
एक दो मिनट के लिए उस महिमा का आत्मा के लिए हम जगह देंगे। परमेश्वर हमको बुलाया है, बुलाए हुआ परमेश्वर वफादार आकर हमको सिद्ध बनाएगा, बलवंत करेगा। थोड़ा दिन के लिए हम कष्ट उठाते हैं, उसके बाद हम सिर करेगा, स्थिर बलवंत करेगा। हालेलुया। थोड़ा समय हम उस पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा, उस महिमा का आत्मा के द्वारा हम भर जाए। हालेलुया। सभी लोग मुंह खोले, धन्यवाद करे, स्तुति करे, अन्य भाषा बोल के हालेलुया। उस महिमा का आत्मा के लिए हम जगा देगा। Hallelujah, 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 hallelujah. जिन्होंने बुलाया यीशु करेगा प्यार, जिन्होंने हमेशा यीशु करेगा प्यार। आमीन, हालेलुया। जिन्होंने बुलाया यीशु करेगा प्यार, जिन्होंने हमेशा यीशु करेगा प्यार, जिन्होंने सियोन विच देवेगा सिंगार, जिन्होंने सियोन विच देवेगा सिंगार। ओले जाएगा शैतान विच आसमान, ओले जाएगा शैतान विच आसमान। यीशु आएगा धरती में शादी रहा, यीशु आएगा धरती में शादी रहा। ओले जाएगा शैतान विच आसमान, ओले जाएगा शैतान विच आसमान। जिन्होंने बुलाया यीशु करेगा प्यार, उन्होंने हमेशा यीशु करेगा प्यार। जिन्होंने बुलाया यीशु करेगा प्यार, उन्होंने हमेशा यीशु करेगा प्यार। उन्होंने सियोन विच देवेगा सिंगार, उन्होंने सियोन विच देवेगा सिंगार। ओले जाएगा शैतान विच आसमान, ओले जाएगा शैतान विच आसमान। उन्होंने सियोन विच देवेगा सिंगार, उन्होंने सियोन विच देवेगा सिंगार। ओले जाएगा शैतान विच आसमान, 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 ओले जाएगा शैतान विच आसमान। तारीफ करेंगे। परमेश्वर हमको दिया बहुत वचनों के लिए हम तारीफ करेंगे। मेरा कलिसिया बनने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया, इसलिए निर्दोष होकर बहुत होकर परमेश्वर का जुर्म में दिखाई देने के लिए, दोनों में बल को पर बल पाने के लिए हरेक परमेश्वर मदद करना चाहिए। दुनिया से हरेक बुराई से परमेश्वर हमको बचा कर रखना चाहिए, इसके लिए हम तारीफ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब दुल्हा होकर बादलों में आएगा, हम दुल्हन होकर बदलने के लिए हम दुनिया के संसार का हरेक बातों को छोड़कर उपदेश में स्थिर होकर, नींव में मजबूत होकर परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ती जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन होकर बदलने के लिए हमारे एक परमेश्वर सहायता करना जो इसके लिए हम तारीफ करेंगे।
आराधना शुरू से लेकर अब तक बहुत आत्मा चला, हमारे एक आशीष किया, उसके लिए हम तारीफ करेंगे। परमात्मा शरीर प्रवेश को हाथ में सौंदर्य तारीफ करेंगे। अब तक पूरा हमारी कुछ है देखकर चलाने तारीफ करेंगे। यीशु मसीह का जल्द आगमन के लिए हमारी प्रवेश लायक बनाने से तारीफ करेंगे। खुदा बेटा को आत्मा के लिए हम तारीफ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावंद प्रभु जी, आज विजय उठने वाले दिन, सप्ताह के पहले दिन तो हमें अपने सम्मुख में लेके आए, इसलिए धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावंद। खास करके खुदावंद हमारी जिंदगी में देखा जाए कोई आशाई भलाई नहीं, लेकिन तेरी दया के द्वारा तूने अभी तक हमें जीवित रखा खुदावंद, संतों की संगति में रखा, तेरे घर में रखा खुदावंद, तेरे खुदावंद विश्वास जीवन में रखा, इसलिए धन्यवाद तारीफ कर दिया। खास करके खुदावंद प्रभु जी हमारे खुदावंद आज शुरुआत से आज हमारी मीटिंग का शुरुआत से लेकर आखिर तक बोझ उठाया, आशीष करके दिया, इसलिए धन्यवाद तारीफ कर दिया। मीटिंग में लाए सारे बहन भाई के लिए धन्यवाद तारीफ कर दिया। मीटिंग में जितने लोग दुख के साथ आए उनके सारे दुखों से छुटकारा देना चाहिए, बीमारी के साथ आए छंगाई देना चाहिए, और खुदावंद कई परेशानियों के साथ आए उनका सारी परेशानियों से खुदावंद छुटाने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंद प्रभु जी। खास करके खुदावंद मीटिंग में खुदावंद प्रभु जी तेरे आत्मा हमारे बीच में मंडराता रहा, तूने हमसे खुदावंद हमको खुदावंद प्रभु जी बलवंत किया, इसलिए धन्यवाद तारीफ कर दिया। हमारे खुदावंद प्रभु जी गीत की सेवा का बोझ उठाया, आशीष करके दिया, और खुदावंद आत्मा के आराधना के भाव का बोझ उठाया, हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद तारीफ कर दिया। वह खुदावंद गवाही की सेवा का बोझ उठाया, जितने लोगों ने खुदावंद गवाही में प्रार्थना की मांग किया, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, बीमारियों से छंगा करना चाहिए, दुखों से खुदावंद छुटाने के लिए तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंद प्रभु जी वचन की सेवा का बोझ उठाया, वचन हम सुनने वाले नहीं, वचन हमारे जीवन में खुदावंद उसको खुदावंद प्रभु जी उसके वचन के अनुसार हमारे जीवन को खुदावंद बनाने के लिए तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। सचमुच खुदावंद प्रभु जी एक तेजस्वी कलीसिया बना के खुदावंद तो अपने सामने खुदावंद खड़ा करने वाला खुदावंद, जिसमें ना कोई खुदावंद कलंक न जुड़ी और ना कोई ऐसी वस्तु है खुदावंद वन पवित्र निर्दोष है करके खुदावंद प्रभु जी, इसे हम खुदावंद प्रभु जी कलीसिया के बारे में देखा खुदावंद एक शाया के रूप में खुदावंद, जो खुदावंद अदर के बाटका के खुदावंद प्रभु जी जो है खुदावंद वो एक कलीसिया खुदावंद, और खुदावंद जो है खुदावंद मूसा के तंबू जो है खुदावंद एक खुदावंद कलीसिया के रूप में खुदावंद उस समय दिखाई दिया खुदावंद प्रभु जी। आज देख खुदावंद प्रभु जी हमें खुदावंद तूने इस संसार से खुदावंद प्रभु जी हमें खुदावंद इस संसार से तूने मैं बुलाया, और खुदावंद खुदावंद धर्मी ठहराया, और खुदावंद तूने महिमा दिया करके खुदावंद प्रभु जी, उसके लिए खुदावंद प्रभु जी हम तेरे धन्यवाद तारीफ करते हैं। खास करके खुदावंद प्रभु जी और ये खुदावंद तेरे प्यार में खुदावंद बने रहने के लिए खुदावंद तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंद। खास करके खुदावंद प्रभु जी तू हमें खुदावंद एक कलीसिया के खुदावंद खुदावंद हमें एक खुदावंद प्रभु जी एक पवित्र कलीसिया का खुदावंद बदलने के लिए चाहता है खुदावंद प्रभु जी, इसलिए हम खुदावंद हमेशा तेरे खुदावंद उस खुदावंद प्रभु जी तेरे खुदावंद स्वभाव में पाए जाने के लिए खुदावंद तेरे खुदावंद प्रभु जी स्वभाव में पाए जाने के लिए खुदावंद तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंद। हम संसार से अपने आप को अलग रखने के लिए खुदावंद तो मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंद एक खुदावंद जैसे खुदावंद आदम के अंदर खुदावंद आदम जो मिट्टी से बनाया गया था, लेकिन हवा जो खुदावंद प्रभु जी वो मिट्टी से नहीं बनाई गई थी, इसलिए खुदावंद प्रभु जी हमें खुदावंद प्रभु जी जैसे तो आपने आप बुद्ध का खुदावंद जैसे मैं संसार का नहीं खुदावंद, इसलिए हम भी संसार के नहीं होने चाहिए खुदावंद। इस संसार से खुदावंद अपने आप को अलग रखते हैं खुदावंद, जीवन बताने के लिए तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। हाँ खुदावंद प्रभु जी जैसे खुदावंद हड्डी जो उपदेश को दिखाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में खुदावंद हमारे खुदावंद प्रभु जी शिक्षा रूपी खुदावंद नेम को खुदावंद प्रभु जी अपने जीवन में खुदावंद डालते हुए खुदावंद उसमें खुदावंद आगे बढ़ते जाने के लिए खुदावंद तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ कर दिया। प्रेरित और भविष्यवक्ता के खुदावंद जो हमें उपदेश और खुदावंद दिया वो खुदावंद सच्चाई दी उसमें अपने जीवन को बनाने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंद प्रभु जी। खास करके खुदावंद इसमें बढ़ते जाने के लिए खुदावंद तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंद प्रभु जी तो हमें अपने स्वभाव में भी खुदावंद बढ़ते जाने के लिए खुदावंद सहायता करने के लिए तेरे से दुआ करते हैं
खुदावंदा प्रभु जी, जैसे हारून की जय खुदावंदा छड़ी जो जी उसमें खुदावंदा जीवन था खुदावंदा, इसी प्रकार खुदावंदा हमें तेरे स्वभाव में हम जब पाए जाएंगे, हमारे जीवन में जीवन आएगा खुदावंदा प्रभु जी, और उसके जीवन ही हमारे जीवन खुदावंदा एक पुनरुत्थान में खुदावंदा होकर बदल जाएगा खुदावंदा। इसलिए हमें खुदावंदा हमेशा तेरे खुदावंदा खुदावंदा अपने आप को खुदावंदा ऐसे तेरे स्वभाव में पाए जाना है। तो खुदावंदा हम अपने आप को खुदावंदा प्रभु जी पाप से और शरीर के खुदावंदा द्वारा कलंकित होने वाले खुदावंदा बातों से खुदावंदा संसार से खुदावंदा प्रभु जी अपने आप को अलग रखते हुए खुदावंदा जीवन बताने के लिए तू मदद करना चाहिए। हमेशा तेरे खुदावंदा बल को बल प्राप्त करते हुए खुदावंदा से उनमें तुझे अपना मुंह दिखाने के लिए खुदावंदा तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ कर दिया। सचमुच खुदावंदा प्रभु जी तू हमें खुदावंदा और भी खुदावंदा तेरे प्यार में बढ़ते रहने के लिए खुदावंदा तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ कर दिया। बच्चे को हमारे जीवन को बनाने के लिए खुदावंदा सहायता करना चाहिए। खुदावंदा प्रभु जी हमेशा खुदावंदा प्रभु जी खुदावंदा शिक्षा पे नियम खुदावंदा और खुदावंदा प्रभु जी और खुदावंदा उपदेश में खुदावंदा प्रभु जी तेरे स्वभाव में बढ़ते जाने के लिए खुदावंदा सहायता करने का तेरे से दुआ करते हैं। तेरे जो साथ रहने के लिए मदद करना चाहिए। हमारे संडे स्कूल की सेवा का बोझ उठाना चाहिए, आशीष करके देने के लिए मदद करना चाहिए। जब इस मीटिंग का बोझ उठा चलाने के लिए आशीष करके देने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। गर्मी से हमें हम लोगों को बचा के रखने वाले मदद करना चाहिए। हमारे फेथ हम जल्दी बनने के लिए खुदावंदा रुकावट सब दूर हटाने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। संसार के खुदावंदा प्रभु जी खुदावंदा जो भी लड़ाई झगड़े खुदावंदा उसको भी खुदावंदा प्रभु जी शांत करके देने के लिए मदद करना चाहिए। पूरा सप्ताह खुदावंदा अपने आप को नीचे छिपा के रखने वाले मदद करो। तेरे राज्य के लिए तैयार करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ। Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with every one of us now and until Jesus returns in glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.